And at a pivotal juncture, challenges loom large, demanding innovative solutions. From the evolving digital landscape to the ever shifting sands of social justice, the legal horizon beckons us to reimagine, reshape, and redefine. Vidhi Manthan is our answer to this call. Over the duration of this workshop, these halls will transform into a crucible of ideas where we, the young legal minds and the experienced legal luminaries, will come together to churn the very essence of law. Here in Nagpur, we gather not as passive observers but as active participants. Let the stage erupt with vibrant discussions. Let panels ignite with diverse perspectives, and let these sessions become beacon of brainstorming. Let us together question, challenge, and ultimately forge a path forward. Now, I would like to invite Senior Advocate Shekhar Nafre sir, Swami Gyan Gamyananji, and Dr. Ravi Moser to proceed with Deep Prajulan to mark the auspicious beginning of this event. Nice to interact with young students. This interaction, this morning's interaction with Swamiji was a great learning process for me. We were discussing the legal structure that we have in this country and its relation with Dharma. The things which I learnt from Swamiji in 25 minutes or 30 minutes that we interacted, something would have taken at least a couple of months for me to do it on my own. So I am very happy to be here, and I expect that I would learn something from you also. You see, in law, the most important thing is ideas. Ideas combined with experience makes you a good human being and a good lawyer. So I have come here to learn something from you also. And I am very happy that I am here this morning with you. Thank you very much for inviting me. My lecture is tomorrow, and happy to inaugurate this session. Thank you very much. Thank you, Shekhar Nafre sir, for your enriching words. Now I would like to invite Swamiji to bless us with his presence and his enlightening words.
सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। आदरणीय नाफड़े सर, आदरणीय प्राचार्य सर, इनको मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ। उपस्थित सभी विद्वान छात्र छात्राओं को मेरा सप्रेम नमस्कार। At the outset, let me make one thing clear. Neither I am a law student, nor I am an expert in Indian philosophy. So, my role of addressing you, or my stand of addressing you, is like that from the perspective of a simple monk. एक सामान्य साधु के रूप में, एक सामान्य सन्यासी के रूप में मैं आपको संबोधित करूंगा। सब विधि क्षेत्र के लोग हैं तो आई शुड बी वेरी प्रिसाइज इन माय वोकैबुलरी। इस डर से मैं थोड़ा लिख के लाया हूँ, तो बीच बीच में मैं पढ़ के सुनाऊंगा। 10 मिनट जब बोलने की बात रहती है, एक विंस्टन चर्चिल का एक मज़े का एक प्रसंग है। वो बोलते थे कि मुझे यदि किसी भी विषय पर 1 घंटा बोलना हो तो मैं अब भी तैयार हूँ। आई एम रेडी टू स्पीक ऑन एनी टॉपिक फॉर 1 आवर। राइट नाउ वी कैन गो एंड आई कैन डिलीवर ए टॉक। यदि आधा घंटा बोलना हो तो मुझे 10 दिन पहले टॉपिक बता दीजिए, और यदि मुझे 10 मिनट बोलना हो तो मुझे 1 महीना पहले विषय अवगत करा दीजिए। तो 4-5 दिन पूर्व ही मुझे ये टॉपिक और ये आमंत्रण मिला। तो एक सामान्य साधु की भूमिका से, एक सामान्य सन्यासी की भूमिका से में जो विधि है, जस्टिस है, या जिसका अनुवाद यहाँ पे न्याय करके एक सूत्र में किया है, उसके ऊपर मैं मेरी भूमिका रखूँगा। देखिए, विकसित सभ्यताओं में ना विविध व्यवस्थाएं बनती है। विकसित सभ्यताओं में विविध व्यवस्थाएं बनती हैं। अर्थव्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था भी इसी के अंतर्गत एक व्यवस्था है। अभी ये क्राइम, जुडिशियरी, जस्टिस, यू आर हैविंग ए क्रिस्प डेफिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जिससे मैं भली भांति अवगत नहीं हूँ। बहुत सामान्य रूप से एक लेमैन जिस प्रकार से इन चीज़ों से परिचित रहता है, उसी तरह मैं इससे अवगत हूँ, परंतु इसका मूलभूत अर्थ, व्याख्या आपको अच्छी तरह से मालूम है, ऐसा मैं समझता हूँ। अभी देखिए, वैदिक धर्म के अंतर्गत, वैदिक धर्म माने जिसको अभी हम हिंदू धर्म कहते हैं, इसके अंतर्गत न्याय व्यवस्था, जुडिशियल सिस्टम कैसी हो, ये विद्वान लोग हमें बता सकते हैं कि धर्म के परिप्रेक्ष्य में, इन द लाइट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ वैदिक रिलीजन, वैदिक सनातन धर्म, न्याय व्यवस्था कैसी हो, ये उस क्षेत्र के विद्वान अपने को बता सकते हैं। मैं केवल एक सूत्रपात कर रहा हूँ। आई एम जस्ट इनिशिएटिंग वन टॉपिक। देखिए, अभी के भारत के सामने 2 चुनौतियाँ हैं। There are 2 challenges before us. First is how to strike a balance, how to strike harmony between the West and the East. ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल में बैलेंस कैसे करें, विभिन्न जो ज्ञान शाखाएं हैं, विभिन्न जो सिस्टम्स है, उनके बीच तालमेल किस प्रकार से लाया जा सके, ये एक। और द्वितीयतः हाउ टू हैव ए हार्मनी बिटवीन द एन्शंट अँड द मॉडर्न। मराठीत आपण म्हणतो जुनं ते सोनं आणि नवं ते हवं, याच्यात एक मेळ साधला गेला पाहिजे। एव्हरीथिंग दॅट इज एन्शंट नीड नॉट नेसेसरीली बी होली, अँड एव्हरीथिंग दॅट इज मॉडर्न शुड नॉट नेसेसरीली बी डिझायरेबल. So we have to strike a fine balance between these two, Occidental and the Oriental, and modern and the ancient. तो न्याय व्यवस्था और ये जो विचार प्रवाह है उसके मंथन के लिए ये परिसंवाद आयोजित किया है. मैं आयोजकों को और आप सबको उसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस विषय को लेके आगे 1-2 दिन आपकी चर्चा होगी. अभी दूसरी बात हमें जो ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट इज दिस चैलेंज, अनदर थिंग इज किसी भी सभ्यता का, किसी भी सिविलाइजेशन का, संस्कृति का जो रूप रहता है वो प्रवाही रहता है. इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट इज़ बाउंड टू चेंज.
कुठल्याही व्यवस्थेचा ना जोम आहे हे कसं कळतं की नवीन जी आव्हानं आहेत त्याला पुरून उरून त्या त्या संस्कृतीचा जो गाभा आहे त्याची जी मूळ तत्व आहे ती टिकून राहतात की नाही. किसी भी आई एम सॉरी मराठी में हो गया, किसी भी सभ्यता का विगर टिका हुआ ये कैसे पता चलता है कि कालानुरूप जो बदलाव हो रहे हैं, जो आघात प्रतिघात हो रहे हैं, वो सहने की उसमें क्षमता है कि नहीं. देर आर टू थिंग्स, आउटर फॉर्म एंड इनर प्रिंसिपल. यदि इनर प्रिंसिपल हेल्दी है तो वो सिविलाइजेशन टिकती है काल के प्रवाह में, वरना वो नामशेष होती है. भारत को हम मोस्ट एंशंट सिविलाइजेशन बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे आघात भारत ने सहे पर उसके बावजूद भारत बना रहा. इसका क्रेडिट यदि आप मुझे पूछें तो मेरे फील्ड का इसका उत्तर ऐसा है कि भारत में शास्त्र और महापुरुष इनका हमेशा से प्रचलन है. देखिए, हर एक सभ्यता का, हर एक सिविलाइजेशन का एक डिस्टिंक्ट फीचर रहता है, एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक रहती है. भारत की प्रधान वैशिष्ट्य है, भारत का प्रधान वैशिष्ट्य है आध्यात्मिकता, या सामान्य रूप से जिसको धर्म कहते हैं. विवेकानंद जी का यदि हम साहित्य पढ़ें तो विवेकानंद का ये एक हमेशा उद्गार आता है कि धर्म ही भारत का मेरुदंड है. रिलीजन इज द बैकबोन ऑफ इंडिया. यदि हम आंखें कान खोल के देखें तो हमको दिखेगा नहीं ऐसे जिस प्रकार से मीडिया हमको दिखा रही है, या शायद हमारी स्थूल दृष्टि ऐसी है जिससे हमें इसका परिचय न घटे. मैं एक केवल बिंदु आपके समक्ष रखूंगा जिससे हमको पता चलेगा कि धर्म के भी एक ग्रॉस मीनिंग है, एक सटल मीनिंग है. देयर इज वन मीनिंग विच इज इन वोग एंड वन इज द रियल सेंस ऑफ द टर्म. आई एम कमिंग टू दैट स्लोली. भारत धर्म प्रधान है, ये कैसे जाने? देखिए, भारतीय उपखंड छोड़ के अपार्ट फ्रॉम इंडियन सबकॉन्टिनेंट आप मुझे एक सभ्यता, एक सिविलाइजेशन, एक देश ऐसा बताइए जहां पे नदी और पहाड़ इनमें पवित्रता का बोध है. हमारा ऐसा मानना है कि गंगा जी ज्ञानदायिनी है, यमुना जी जो है वो भक्तिदायिनी है, नर्मदा जी वैराग्यदायिनी है. अन्य भी अनेक नदियां हैं जिसके पात्र पे विभिन्न समृद्ध संस्कृतियों का उदय हुआ है. परंतु नदियों में इस प्रकार का धर्म भाव ये भारत ने निर्माण किया है. डू यू अप्रिशिएट दिस? भारतीय उपखंड छोड़ के एक देश या एक सभ्यता बताइए जिसमें पहाड़ों में धर्म भाव है. हिमालय, विंध्याचल, अरुणाचलम. भारत छोड़ के एक अन्य सभ्यता बताइए जिसमें पशु और पक्षियों में धर्म भाव है, पूज्यता की बुद्धि है. गरुड़ जी, हंस, मयूर, ये देवताओं के वाहन है. बाघ, सिंह, इनमें धर्म बुद्धि है. गाय, इसकी हम कठोर चिकित्सा कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू डू दैट. धर्मभूमि भारत, धर्म का प्राधान्य, हमारे सभ्यता का एक प्रबल वैशिष्ट्य किस प्रकार से धर्म है इसकी ओर मैं आपको ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ. नदी, पहाड़, पशु, पक्षी, फल और फूल. सामान्य भारत का मानना है कि सफ़ेद पुष्प शिव जी को प्यारे है, लाल जवा का फूल देवी को प्रिय है, गणेश जी को दुर्वा प्रिय है. ये धर्मबोध फल और फूलों में कहाँ से आया, वनस्पतियों में कहाँ से आया? तुलसीचं झाड़, तुलसी का पौधा पवित्र है, हम ये यूट्यूब, विकिपीडिया पे नहीं सुने पढ़े हैं. ये हमने माँ को करते हुए देखा है, नानी दादी को करते हुए देखा है, और उससे वो धर्म बुद्धि, वो संयम की बुद्धि, वो पवित्रता की बुद्धि, वो निस्वार्थ की बुद्धि धर्म के बल पे हमें इस प्रकार से संस्कारों के रूप में, संस्कार माने नर्वस एसोसिएशन ऑफ आइडियाज, मार्क द डेफिनेशंस. नर्वस एसोसिएशन ऑफ आइडियाज, शिक्षा, संस्कार, इस प्रकार से हमें संक्रमित होती है धर्म के आधार पे. सामान्य हिंदू, सामान्य भारतीय मनुष्य, इसमें ये संयम, सत्य, नीति, न्याय का जो बोध है वो धर्म के माध्यम से हमें प्रविष्ट हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ें हम अपने घर में देख रहे हैं. दिस हैज़ नेवर बीन ए पार्ट ऑफ फॉर्मल ऑफिशियल ट्रेनिंग. घर में जो संस्कार मिलते हैं उससे ये हो रहा है. ठीक, तात्पर्य ऐसा है
सामान्य व्यक्ति का दैनंदिन जीवन, मैं किसी व्यक्ति विशिष्ट का किसी विशेष समय पे होने वाला व्यवहार की बात नहीं कर रहा हूं। डेली लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन इज समवेयर गवर्न बाय religious spiritual principles. This is this strong point of India. This is the strength of Indian culture civilization, which is based on spirituality. ये भारत का एक वैशिष्ट्य है, अन्य किसी भी देश का या सिविलाइजेशन का ये वैशिष्ट्य नहीं है। और जब अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया तब ये बात का उन्होंने बहुत गहराई से अध्ययन किया कि सामान्य मनुष्य, सामान्य भारतीय के दिनचर्या पे इस प्रकार से धर्म की, अध्यात्म की ये अद्भुत छटा कैसे आई, इसके पीछे का कारण क्या है। तो उनको ये चीज़ समझ में आई कि केवल भारत, केवल भारत में दिव्यानुभूति युक्त, दिव्य शक्ति से संपन्न महापुरुषों का उदय निरंतर होते आया है, बारंबार उदय होते आया है। भारत के ऐतिहासिक कालखंड में एक भी कालखंड ऐसा दिखाया नहीं जा सकता जिसमें जिनके गुण दिव्य है, जिनके कर्म दिव्य है, जिनके जन्म दिव्य है, ऐसे महापुरुष जिनमें स्त्रियां भी आती है, इनको पाया नहीं गया। ऐसा कालखंड भारत के इतिहास में दर्शाया नहीं जाता। तो ऐसे महापुरुष और उनके दिव्य अनुभूति से प्रमाणित हुए शास्त्र, दिस इज द बेडरॉक ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। शास्त्र और महापुरुषों के अनुभव, रियलाइजेशंस, रिविलेशंस, ये भारत की नींव है। इसके आधार पर बहुत सारे सिविलाइजेशंस का, अन्य सिविलाइजेशंस का हमारे ऊपर आक्रमण हुआ। काल की अद्भुत गति में कुछ स्थित्यंतर हुए जो संस्कृति का स्वभाव ही है, चढ़ाव उतार होगे ही होगे। पर जिसके गर्भ में, जिसके गाभे में कुछ सारभूत तत्व है, कुछ सचमुच दम है, हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसको पार्शली यहाँ पे लगाया जा सकता है। तो ये सब झेलने के बावजूद भी भारत इस प्रकार से क्यों है, अभी भी सामान्य मनुष्यों के जीवन पे क्यों इस प्रकार के धर्मबोध की छटा है। आपके और हमारे, हम में से किसी का भी वैदिक परवरिश नहीं हुई है, हार्डली कोई होगा तो होगा कि जो पाठशाला में गया, संस्कृत पढ़ा वगैरह, मोर और लेस हम सभी का मॉडर्न लर्निंग है। पर ये समवेयर इन द बैक ऑफ द माइंड दिस इज रिंगिंग ऑलवेज। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ऐसा है, ये अध्यात्म, ये धर्म, ये भारत का मूल अधिष्ठान है, मेरुदंड है। अन्य सभी व्यवस्थाएं इसके अधीन आनी चाहिए। न्याय व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था हो, शिक्षण व्यवस्था हो, राज्य व्यवस्था हो, इट इज टूवर्ड्स वन सुप्रीम गोल ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज मोक्ष। अगेन, धर्म जैसे मोक्ष के भी द वर्ड इज वेरी मच मिस इंटरप्रिटेड एंड देयरफॉर मिसअंडरस्टूड। मोक्ष माने अपने को लगता है हाथ पैर बांध के हम बंदिस्त है और मुक्त होना है। ए फ्री इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ मोक्ष कुड बी स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, स्पिरिचुअल परफेक्शन। द होल ह्यूमन रेस इज हेडिंग टूवर्ड्स दिस इन ए ग्रेजुअल वे। और उसके लिए एक ऐसी समाज व्यवस्था चाहिए जिससे अंत में, भारत का कहना है, मनुष्य कृतार्थ हो, जीवन धन्य हो। वी डू नॉट टॉक अबाउट सक्सेस, यू सी, सफलता की ऐसी बात नहीं करते हम। जिसको हम सफलता बोलते हैं उसको भारत, प्राचीन भारत बोलेगा अर्थ, काम, अर्थ का संपादन। तो ये जो काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, यहाँ पे अगेन धर्म इज यूज्ड इन ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव। यहाँ पे धर्म का मतलब होता है राइचियसनेस एंड ड्यूटीफुलनेस। आई एम कमिंग टू दैट। तो इस प्रकार से अपना ढांचा है। ये हम अभी इतना समय नहीं, पर इस परिसंवाद के माध्यम से अलग से हम ये चीज़ें मूलतः समझ लें कि किस प्रकार की समाज संरचना भारत चाहता है। बट इट्स अल्टीमेट बेरिंग, इट्स सुप्रीम बेरिंग इज ऑन व्हाट इज कॉल्ड एज स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, मोक्ष। सामान्य भाषा में यदि बोला जाए, भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति। अगेन, वर्ड्स आर वेरी ट्रिकी, आई एम टॉकिंग विथ लॉ स्टूडेंट्स, इसलिए मुझे हमेशा थोड़ा मन में सचेत रहना पड़ रहा है। भक्ति, हाउ टू डिफाइन भक्ति, बहुत सारी डेफिनेशंस, आई विल गो विथ ए सिंपल
ट्रांसलेशन डिवाइन लव, वी नो पिंक लव, पर ये डिवाइन लव मतलब उसको गेरुआ प्रेम वगैरह मुझे नहीं बोलना है, पर जो मनुष्य को भगवान के प्रति लगता है, मुझे प्रवचन नहीं देना है, बट वी विल गो विथ सिंपल ट्रांसलेशन। डिवाइन लव इज भक्ति, डिवाइन नॉलेज इज आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान। दिस इज सफिशिएंट फॉर द इनॉग्रल सेशन। तो भारत का कहना है ये पूरी जो हमारी इवोल्यूशन है, देखो बंदर का मनुष्य बना, जैसे हम रूढ़ अर्थ में समझते हैं, मनुष्य बनने के बाद इवोल्यूशन रुक गई क्या? भारत बिलीव्स इन साइको स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, जहाँ पे पशुत्व से मनुष्यत्व और मनुष्यत्व से दिव्यत्व की ओर हम जाते हैं। दिस इज मिसिंग इन मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम, ह्यूमैनिटी टू डिविनिटी। डू यू अप्रिशिएट दिस? अभी हम एक ऐसी क्रेनियल कैपेसिटी, अपोजेबल थंब, इरेक्ट पोस्चर वाला मनुष्य जानते हैं, उसके आगे क्या है? भारत का कहना ऐसे है कि मनुष्य दिव्यत्व की ओर अग्रसर होता है, और ऐसे टोटली इवॉल्व जो मनुष्य है, परफेक्टेड सोल, उसके होराइजन पे है भगवान बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, रामचंद्र, श्री रामकृष्ण परमहंस इत्यादि महापुरुष। दीज आर परफेक्टेड सोल्स, पूर्ण पुरुष जिनको बोलते हैं। होमवर्क के लिए बोलता हूं, गीता, भगवत गीता द्वितीय अध्याय, भगवत गीता छठवां अध्याय, 12वां अध्याय, 14वां अध्याय, इसके एंड में ऐसे परफेक्टेड सोल्स के विस्तार से वर्णन आते हैं। स्थितप्रज्ञ, योगी, भक्त, त्रिगुणातीत, हम ये पढ़े। दिस इज द गोल ऑफ सोसाइटी, दिस इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसके लाइट में न्याय व्यवस्था बिठानी पड़ेगी। मनुष्य क्राइम क्यों करता है? उसके जीवन में कुछ अभाव है। यदि यहाँ पे 10 रुपए की नोट गिरी है, आप में से किसी को ये बुद्धि नहीं होगी कि ये नोट मार लूँ, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम वेल ऑफ फैमिलीज। एक मॉरलिटी का सेंस ऐसा है। या दूसरा होगा, उठा के हम पूछेंगे भाई ये किसका है, ये क्यों है? और जो समझ लीजिए, डोंट गेट मी रॉन्ग, कोई झोपड़पट्टी का लड़का हो, वो देखेगा कौन कैसे नहीं देख रहा और मैं ये जेब में डाल दूँ, उसमें और हमें, मतलब जो ये करता है और जो ये नहीं करता है, यू नो द डेफिनेट मीनिंग ऑफ क्राइम। पर शुरू कहाँ से होता है? ये अभाव बुद्धि है, उसमें क्यों है और इसमें क्यों नहीं है। तो उसका यदि अल्टीमेट बेयरिंग, इफ इट इज रियली ऑन स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, ये चीज़ें नहीं होगी। उसके बावजूद भी क्राइम होगा ही होगा। तो वो हैंडल करने के लिए भी एक सिस्टम चाहिए, एक व्यवस्था चाहिए, न्याय व्यवस्था। आई एम कमिंग टू दैट ग्रेजुअली। तो बात ऐसे है, देखिए हम जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, सभ्यताओं में विभिन्न व्यवस्थाएं रहती हैं, और उसमें हमारी चुनौती इस प्रकार की है कि मॉडर्न और एंशंट, ईस्ट एंड वेस्ट, इसका एक हम समन्वय सधे। मैं एक कहानी बताता हूँ छोटी सी। एक बार ऐसे हुआ, एक बच्चा माँ की उंगली पकड़कर मेले में चला गया। मेले का उद्देश्य है कि वो जो ग्राम देवता उसका दर्शन करना है, इसलिए माँ उसको वो देवता दर्शन के लिए लेके जा रही है। वो छोटा बच्चा है, 4-6 साल का बच्चा है, माँ की उंगली पकड़ के जा रहा है। उसको ना बीच में दिखता है एक टोपी वाला। टोपी वाले के पास विभिन्न आकारों के, विभिन्न रंगों की टोपियाँ हैं। छोटा बच्चा है, वो माँ से जिद करता है कि मुझे एक टोपी दिलवा दो, और माँ बोलती है अभी नहीं, बाद में। बच्चा मान लेता है। ये और आगे चलते हैं, तब उनको एक गुब्बारे वाला दिखता है। गुब्बारे वाले के पास भी विभिन्न आकार के, विभिन्न रंगों के गुब्बारे हैं। बच्चा बोल रहा है मुझे एक गुब्बारा दिलवा दो, माँ बोलती है अभी नहीं, बाद में। और आगे चलते हैं, बच्चा थोड़ा मायूस होता है, अप्रसन्न होता है, पर माँ का कहना मान लेता है। और आगे जाते हैं, वहाँ पे एक मिठाई वाला दिखता है। मिठाई के दुकान में भी विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, विभिन्न रंगों की मिठाइयाँ बहुत अच्छे से सजाई हुई रखी है। बच्चा पुनश्च जिद करता है, माँ पुनश्च ना बोलती है। इसके बाद बच्चा इतना मायूस होता है, वो बालक, वो माँ की उंगली छोड़ देता है और वहीं पे बैठ के रोना धोना शुरू करता है। भीड़ है, माँ की उंगली छूट गई है, माँ अपने हिसाब से आगे जा रही है। बच्चा भीड़ में खो जाता है, उसको दिशाओं की सुध नहीं है, छोटा बच्चा है वो, और वो रोते हुए, माँ को पुकारते हुए गलती से उल्टी दिशा में चलना शुरू करता है। तो पहले उसको मिठाई वाला दिखता है। मिठाई वाला बोलता है कि
यही बच्चा है जो कुछ समय पहले माँ से जिद कर रहा था, वो उसको बुलाता है, उसके आंसू पोंछता है और उसको बोलता है भाई जितनी मिठाइयाँ चाहिए बेटा, मिठाई खा लो, घर लेके जाओ। बच्चा बोलता है मिठाई नहीं चाहिए, माँ चाहिए। रोता हुआ, माँ को पुकारता हुआ वो आगे आगे जा रहा है, उसको गुब्बारे वाला दिखता है। गुब्बारे वाला भी पहचानता है कि ये कुछ समय पहले जिद करने वाला यही लड़का है। वो उसको बुलाता है, उसके आंसू पोंछता है, उसको गुब्बारे देता है। तो बच्चा बोलता है गुब्बारे नहीं चाहिए, माँ चाहिए। और आगे आता है, वो टोपी वाला दिखता है, वहाँ पे भी वही बच्चा बोल रहा है टोपी नहीं चाहिए, माँ चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश एजुकेशन एंड इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन, क्या ये वो गुब्बारे वाले, मिठाई वाले और टोपी वाले हैं? ग्लोबलाइजेशन, फ्री इकोनॉमी, डिजिटल रिवॉल्यूशन, क्या ये गुब्बारे वाले, टोपी वाले, मिठाई वाले हैं? क्या वो बालक भारतवासी है और भारत माता की उंगली छूट रही है? हम हमारा राष्ट्रीय वैशिष्ट्य भूल के क्या अंधता से ये चीज़ें ले रहे हैं? बच्चों को खाना पीना और खिलौने चाहिए। हर एक सभ्यता को ये आदान प्रदान होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही उसके ऊपर जोर दिया है। आदान प्रदान, एक्सचेंज इज द रूल, बट वी शुड नो व्हाट टू टेक, हाउ मच टू टेक, एंड बियॉन्ड दैट वी शुड नो हाउ टू मोल्ड इट इन आवर ओन नेशनल आइडियल। दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो कहाँ पे ये भारत माता की उंगली छूट रही है क्या? ये मुझे बहुत आनंद है कि इस प्रकार के परिसंवादों का आयोजन यहाँ पे हो रहा है। एक्सचेंज होना ही चाहिए, पर हमको हमारा राष्ट्रीय स्वत्व जो है, हमारी राष्ट्रीय अस्मिता जो है, उसको बरकरार रखते हुए इन चीज़ों का स्वीकार करना है। मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि इन सब चीज़ों का पुनरावलोकन, पुनर्रचना हो रही है अभी। शायद पेन्ना जी इसके ऊपर अधिक अधिकार से प्रकाश डालेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक सामान्य आदमी को ना किस प्रकार की चर्चा होना अपेक्षित है? यदि हम न्याय की बात करें तो न्याय व्यवस्था की, देखिए सामान्य आदमी के दृष्टि से मैं भूमिका प्रस्तुत कर रहा हूँ। न्याय देवता जो हम देखते हैं, आपने प्रत्यक्ष रूप से देखी है, हमने टीवी वगैरह पे देखी है, हमको क्या दिखता है? देखिए, जो ग्रीक देवता का जो हमने प्रतीक, जो सिंबल हमने जस्टिस का, न्याय देवता का, द गॉडेस ऑफ जस्टिस जो हम देखते हैं कि वो एक महिला है, आंखों पे पट्टी है, एक हाथ में तराजू है, एक हाथ में तलवार है। सामान्य आदमी की दृष्टि से बोल रहा हूँ कि न्याय देवता एक महिला है, संवेदनशील हृदय की, आंखों पर पट्टी है, शी इज़ अनबायस्ड, तराजू है, शी इज़ वेइंग एवरीथिंग। ये जो लिखा है ना, प्रमाणैहि अर्थ परीक्षणम न्यायः, तो ये जो परीक्षा अन्वीक्षिकी जो है वो कर रही है तराजू से, और तलवार है, वो दंड देने की भी क्षमता रखती है। दिस इज द आइडिया ऑफ यूरोपियन और इंग्लिश जुडिशियली सिस्टम जो है, प्रतीक, सिंबल के रूप से। भारत में यदि देखा जाए तो क्या है? परंपरागत रूप से चित्रगुप्त, यमराज, शनि। वी नीड टू रिकनसाइल दिस। सी, अभी फिल्मों में क्या है, ये चीज़ें ना कॉमिकली प्रेजेंट की जाती है, वैसा उसका नहीं है। भारत ने भी प्रतीकों के रूप में इनका एक प्रकार से प्रस्तुतिकरण किया है। कठोपनिषद में यम देवता को सत्य धर्मा बोला है, जिनका रूप ही सत्य है। वो सत्य माने सोशल सत्य नहीं, सामाजिक सत्य नहीं, सुप्रीम रियलिटी। उसके आचार्य के रूप में यम देवता हमें ज्ञात है, और जब हम फिल्मों में इस प्रकार से विदूषक के रूप में देखते हैं, हमको दुख होता है इसका। चलो, ये भी आज के परिसंवाद का विषय नहीं, बट दीज टू स्ट्रीम्स आर टू बी रिकनसाइल्ड। ये सिंबल के पीछे का तत्व क्या है, और भारत जिनको प्रतीकों के रूप में, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के रूप में जिनको प्रस्तुत कर रहा है, व्हाट इज द इसेंस बिहाइंड इट? ये बैठ के ये सब सूत्रपात हो रहा है। आई एम नॉट गिविंग एनी कंक्लूसिव रिमार्क। उसके लिए अपने अपने क्षेत्र के, दोनों क्षेत्रों के विद्वान आपके समक्ष आने वाले हैं। मैं केवल एक विषय की भूमिका आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये विद्वानों के विषय है, विद्वान हमें मार्गदर्शन करें। तो मूल ऐसा है कि सामाजिक न्याय, नीति, कानून, ये हम ऐसा मानते हैं धर्म के अंतर्गत आता है, धर्म की कक्षा में आता है। अगेन, कौन सा धर्म, उसकी मैं भी आपको एक क्रिस्प डेफिनेशन बोलता हूँ ना। धर्म की एक ऐसी व्याख्या है, थोड़ा संस्कृत सुन ले हम।
जगतः स्थिति पालनम प्राणिनां साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु स धर्मः। धर्म क्या है कि जिससे जगत का संतुलन बना रहे, जगत की हार्मनी इक्विलिब्रियम बना रहे, और उसके साथ साथ इट शुड बी द कॉज ऑफ मटेरियल एंड सोशल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स। दिस इज क्वाइट ए कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ धर्म। धर्म आई वोंट ट्रांसलेट इन टू स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन। ग्रॉस मीनिंग धर्म का है सदाचार और कर्तव्य परायणता, राइचसनेस एंड ड्यूटीफुलनेस। बट द मोर कॉम्प्रिहेंसिव टर्म डेफिनेशन इज लाइक दिस: द वन विच मेंटेन्स द हार्मनी और इक्विलिब्रियम ऑफ द वर्ल्ड, और थोड़ा डाइल्यूट करके ऑफ द सोसाइटी, एंड द वन विच इज द कॉज ऑफ मटेरियल as well as spiritual well-being of an individual. जगत स्थिति पालनम प्राणिनाम साक्षात निश्रेयस अभ्युदय हेतु। अभ्युदय माने वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी, निश्रेयस माने मोक्ष, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, एनलाइटनमेंट। ठीक, दिस इज अगेन द बेडरॉक, द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ धर्म। ये थोड़ा मननपूर्वक मन में बिठाना चाहिए। धर्म को लेके और प्रकाश डालने वाली एक महाभारत की छोटी कथा बोल के मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा, जिससे ये प्रॉपर जुडिशरी जस्टिस के ऊपर प्रकाश डाला जाता है। ये कथा है, इसमें आपाततः अपरेंटली वी मे फाइंड ए फ्यू थिंग्स बीइंग एग्जैजरेटेड, थोड़ा अतिरंजन हो सकता है, ऐसे हमें ऊपर ऊपर से लग सकता है, हम कथा सुन लेते हैं। महाभारत के शांति पर्व में ये कथा आती है। कथा में है शंख और लिखित नाम के दो मुनि हैं, दो ऋषि हैं, दोनों भाई हैं। शंख बड़ा भाई है, लिखित छोटा भाई है। एक बार ऐसे होता है कि ये जो लिखित है ये अपने बड़े भाई शंख के घर पे जाता है, और शंख उस समय घर पे नहीं है। थोड़े समय के बाद लिखित को भूख लगती है, और वो देखता है कि भाई का जो आश्रम है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनको सुमधुर फल हैं। तो लिखित वो भाई का ही तो घर है, भाई के ही तो पेड़ है, ऐसा समझ के वो फल तोड़ के खाता है। और उस समय शंख वहाँ पे आते हैं। तो ये जो शंख है, ही हैज़ ए डिफरेंट सेंस ऑफ जस्टिस। तो वो अपने भाई को बोलते हैं कि तुमने मुझे बिना पूछे ये फल खाए हैं, इसमें तुमने गुनाह किया है, यू हैव कमिटेड ए क्राइम। इसलिए तुम यहाँ इस देश के राजा के पास जाकर चौर्य कर्म के लिए, चोरी करने के लिए जो दंड है वो ले लो। और ये भी धर्माचारी है, सदाचार से युक्त है, वो उस देश के राजा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने इस प्रकार की चोरी की है, तो आप मुझे इस कानून व्यवस्था के मुताबिक दंड दो। तो राजा बोलता है, जैसे राजा भी धर्म प्रधान है, राजा बोलता है जैसे राजा को दंड देने का अधिकार है, वैसे आप ऋषि हो, मुझे क्षमा करने का भी तो अधिकार है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको इस बात के लिए क्षमा करता हूँ। तो लिखित बोलते हैं, नहीं, मेरे ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा है। देखिए धर्माचरण किस प्रकार का है कि मैं इस राज्य व्यवस्था के, न्याय व्यवस्था के अधीन जो दंड है वो लूँ। तो राजा बोलता है कि चौर्य कर्म के लिए यहाँ की व्यवस्था है कि हाथों को काट डाला जाता है, हैंड्स आर चॉप्ड ऑफ। तो लिखित बोलते हैं तो मुझे ये दंड दीजिए। और राजा भी उस प्रकार का दंड उनको देते हैं। वो जो लिखित है उनके दोनों हाथ काटे जाते हैं, और अत्यंतिक वीड़ा परंतु प्रसन्नता के साथ लिखित अपने बड़े भाई शंख के पास आते हैं और बोलते हैं कि दादा, जिस प्रकार से आपने बताया था उस प्रकार से मैंने दंड ले लिया है। महाभारत की कथा आगे ऐसे कहती है हमें कि फिर ये बड़े भाई जो है वो बोलते हैं कि देखो, दंड तो मैं भी तुमको दे सकता था, पर तुम्हारा जीवन धर्माधिष्ठित हो, तुमने ये जो गलती की है उसको तुमको उचित समय पे उसका दंड मिले, और
राजा का भी तो दायित्व है कि वो न्याय व्यवस्था को बरकरार रखे। ही ऑल्सो शुड अबाइड बाय जो न्याय की प्रक्रिया उससे उसको भी वो भी उसके ऊपर लागू है, उसकी भी रक्षा हो। इसके लिए मैंने तुमको राजा के पास भेजा और जिस प्रकार से प्रचलित न्याय है वैसे न्याय करवाया। कथा आगे कहती है कि वो बोलते हैं कि आप इस नदी में डुबकी मारो। शंख जो है वो अपने हाथ कटे हुए भाई को बोलते हैं कि आप इस नदी में तर्पण करो, ऋषियों को पितरों को तर्पण वगैरह करो। और वो जैसे वो करने के लिए जाता है, नदी में अवगाहन करता है, तो कथा ऐसे कहती है कि उसके दोनों हाथ वापस आते हैं। और बड़े भाई बोलते हैं कि तेरा ये जो तपश्चर्या है, तेरा जो ये तपाचरण है, तेरी जो तपश्चर्या है, इसके फलस्वरूप तुमको ये हाथ प्राप्त हुए हैं। इसमें जो आप हमें अपरेंटली एग्जैजरेटेड पोर्शन लगता है वो थोड़ा दूर रखिए, डोंट गेट लल्ड बाय दैट। मेन जो बात यहाँ पे अपने विषय को ध्यान में रखते हुए बताई गई है वो ध्यान में रखिए। छोटा भाई, बड़ा भाई और राजा, न्याय, जस्टिस और उसकी प्रक्रिया, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे इस प्रकार से ये लगता है कि भारत का कहना है कि धर्म के अधीन न्याय व्यवस्था आती है। न्याय व्यवस्था धर्म के कक्षा के भीतर आती है। और किस प्रकार का धर्म कि जो सृष्टि का संतुलन बनाए रखता है, सृष्टि की स्थिति बनाए रखता है और उसके साथ साथ मनुष्य मात्रों के भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए जो प्रयोजन हेतु है। ठीक, अभी एक जो पॉइंट था कि हाउ टू हार्मोनाइज द एंशंट एंड द मॉडर्न, विवेकानंद जी का एक इसके ऊपर एक कथन है, मैं वो बोल के अपने वाणी को विराम देता हूँ। स्वामी विवेकानंद, he has taken a huge initiative in this regard. He lived only for 39 years, so he could not actualize many of his ideas. पर एक विचार सूत्र उन्होंने दिए हैं, how to reconcile this, the east and the west, the ancient and the modern. मैं स्वामी जी के खुद के पत्रों में से हम कुछ आपके समक्ष रखूँगा। स्वामी जी कह रहे हैं, I want to give them dry hand reason, soften in the sweetest syrup of love and made spicy with intense work and cooked in the kitchen of yoga so that even a baby can easily digest this. स्वामी जी बोल रहे हैं कि मुझे इस प्रकार से मेल सदना है। आगे वो बोलते हैं, you see, to put the Hindu ideas into English and then make out of dry philosophy and intricate mythology and queer startling psychology a religion which shall be easy, simple, popular and at the same time meet the requirements of the highest minds is a task only those can understand who have attempted it. The dry abstract Advait must become living poetic in everyday life. Out of hopelessly intricate mythology must come concrete moral forms, and out of bewildering yogiism must come the most scientific and practical psychology. And all this must be put in a form so that a child may grasp it. This is my life's work. ये विवेकानंद कहते हैं। तो ये हमारे सामने के आह्वान है, जिसमें मैं समझता हूँ विवेकानंद जी का काफ़ी हमें उनके वाङ्मयों का हमें आधार ले सकते हैं। दोनों क्षेत्रों के विद्वान हमारे सन्मुख आएंगे आज और कल, उनसे भी हम अनेक कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि और सजग होकर और चेतन होकर मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो ध्यान में रखते हुए एक कर्मयोग के स्पिरिट में, कर्मयोग से भाव से हम इस न्याय व्यवस्था का ये जो क्षेत्र है उसकी ओर देखें और इसमें हम हमारी भूमिका उत्तमता से निभाकर भारत जिसको मोक्ष बोलता है, स्पिरिचुअल परफेक्शन बोलता है, उसके हम धनी हो, हमारा जीवन कृतार्थ हो, धन्य हो। यही मैं प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। Swamiji, your words were very knowledgeable and divine at the same time, and I would like to thank you on behalf of all that are present here.